مجھے دنیا میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کھجوریں ہی کھاتا رہا انہا لحیات طویلہ، پھر تو لمبی زندگی دنیا میں گزر جائے گی۔ کھجوروں کو وہی دیکھتے ہیں، جا کر کے مارکے میں شریک ہوتے ہیں، دسیوں کو کاٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر مل جاتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے، یہ وہ فلسفہ ہے جو دشمن کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نہ جانے کیا کرتے ہیں، اچھا خاصا SSC میں پڑھتا تھا، فرسٹ ایئر میں بہت اچھے نمبر لیے تھے، اگلے سال رہا ہوتا بہت اچھی پوزیشن میں ہر یونیورسٹی میں داخل ہو سکتا تھا، وہاں سے آگے بڑھتا، اسپیشلائز کر لیتا، پھر اچھی نوکری مل جاتی، نہ جانے یہ کیا سمجھاتے ہیں، بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا، مار کا لڑا، انشاءاللہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر بھائیو، ہم نے کیا سمجھانا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ جب تیری جنت پختہ ہے، دنیا میں آئے ہو جنت لینے کے لیے، ایک آدمی کو اگر ممتحن یہ کہے کہ تو چاہو پیپر میں بیٹھو چاہو نہ بیٹھو، میں 100 کے 100 پورے نمبر دے دوں گا، وہ بیٹھتا پھر پیپر میں؟ وہ پیپر میں نہیں بیٹھتا، وہ نکل جایا کرتا ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں 1 منٹ نہیں بیٹھتا کہ جب مجھے کامیابی کی ضمانت مل رہی ہے میں یہاں کیا کروں گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا دیتا ہے پھر وہ یہاں نہیں بیٹھتا، پھر وہ نکل جاتا ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک اور ساتھی آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے جی میں مسلمان ہو جاؤں یا قتال کروں؟ فرمایا دونوں کام کرو، ادھر کلمہ پڑا، ادھر جا کر کے لڑائی لڑی، اور اسی مارکے میں شہید ہو گیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے تھوڑی محنت کی ہے اور بہت زیادہ اجر لے لیا ہے۔ بہت زیادہ کتنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 گھنٹہ 1 گھڑی جہاد و قتال میں گزارنا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ کہا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ افضل ہے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ من قاتل فی سبیل اللہ فوا کا ناقتل، جس نے اونٹنی کا دودھ نکالنے کی مدت جہاد و قتال میں شرکت کی، وجبت لہ الجنہ، دشمن قتل ہوا نہیں ہوا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اونٹنی کا دودھ نکالنے کی مدت جس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اجر تقریباً 700 گنا سے زیادہ بیان فرماتے ہیں۔ کئی ایک مقامات ہیں جس میں عام انویسٹمنٹ کرو تو کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا 10 گنا پائے گا۔ ادھر کہا اونٹنی ایک کی ہے تو 700 ملے گی۔ اور پھر ہر جگہ پر پروٹوکول ملے گا، قبر میں بھی پروٹوکول ملے گا، حشر میں بھی پروٹوکول ملے گا۔ اور فرمایا جہاد و قتال کرو فإنہ باب من ابواب الجنہ، یہ جہاد جنت کا ایک دروازہ ہے۔ تو دوسری حدیث میں آتا ہے جو روزہ رکھتا ہے وہ باب ریان سے داخل ہوگا، نمازی کتاب باب صلاۃ سے داخل ہوگا، اور مجاہد باب جہاد سے داخل ہوگا۔ نمازیں تو وہ بھی پڑھتا۔ اس کام کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس مارکوں میں شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کو تحریر کرتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، اور اس سے زیادہ اس کی زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ رب الجلال فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جمعے کا خطبہ
तेरे दर्शों का मौजू जिहाद फी सबीलिल्लाह होना चाहिए, किताब फी सबीलिल्लाह होना चाहिए, इनको जमा करो, इनको जिहाद पर उभारो। इस मौजू पर बोलने का हुक्म अल्लाह ताला खुद देता है। या अय्युहन नबी हर्रिल मोमिनीन अलल किताल, लोगों को उठाओ उभारो। ये जो यहां तक पहुंच गया है हमारे पड़ोस में, हमारे सरों पर, इसका एक ही इलाज है, और ये इलाज भी रब्बुल जलाल ने खुद बयान फरमाया, फकातिल फी सबीलिल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में किताल करो। अल्लाह क्या मिलेगा? ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक, कहा अगर कोई और तेरे साथ ना भी जाए आप अकेले ही चले जाओ। अल्लाह मैं अकेला चला जाऊं? कहा हाँ, ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक वहर्रिल मोमिनीन, इनको एक बार बता दो कि सौदा बहुत अच्छा है, मिलेगा बहुत कुछ, फिर तो आपके साथ जाए फरिहा, ना जाए तो आप चले जाओ। कहा फिर क्या मिलेगा? फरमाया असल्लाहु अन यकुफ्फ बअसल्लज़ीना कफरू, अल्लाह ताला काफिरों की पेशकदमी को रोक देगा। हम काफिर की पेशकदमी रोकना चाहते हैं ना, फरमाया अल्लाह काफिर की पेशकदमी रोक देगा। आप मैदान सजाओ, मैदानों में आओ, लड़ाई करो या ना करो, पहला फायदा ये होगा अल्लाह दुश्मन की पेशकदमी रोक देगा। 5 लाख से ज्यादा फौज लेकर आया था रूस अफगानिस्तान में, और अमेरिका उसका रास्ता रोकने के लिए कोई और स्ट्रेटेजी बना रहा था कि शायद यहाँ से अरब है वो भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आगे अफ्रीका है वहां शायद कहीं जाकर के इसका मुकाबला हो सके। लेकिन अल्लाह के बंदे वो फटी सलवारों, पोकलीसों वाले, तलंदकारी वाले, लिबास वाले, और डंडे और गनों और कुल्हाड़ियों और खंजरों के साथ दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए। असल्लाहु अन यकुफ्फ बअसल्लज़ीना कफरू, उनके खड़े होने से रब्बुल जलाल ने दुश्मन की पेशकदमी रोक दी, और तकरीबन 3 साल तक बेसरा समाने के साथ दुश्मन को रोके रखा, तब जाकर के बैरूनी मदद आना शुरू हुई। जो कुछ है लेकर के आ जाओ, जो नहीं उसका इंतजार न करो, जो है उसको छोड़ करना और साथ लेकर आओ। दुश्मन की पेशकदमी रुक जाएगी और फिर तुम्हारी मदद अल्लाह करेगा। वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला, अल्लाह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, अल्लाह अपना तारुफ करवाता है, अल्लाह शदीद लड़ाई की महारत रखने वाला है। वह अशद्दु तनकीला, और बहुत ज्यादा इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह ताला की स्ट्रेटेजी, उसकी महारत है, उसकी टेक्निक वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मैं बहुत ज्यादा मार्कों और लड़ाइयों की महारत रखता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बदर के बारे में क्या फरमाया था? कहा इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, फरिश्तों जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐ फरिश्तों जाओ बदर में जाकर सहाबाए किराम के ताउन करो। अन्नी माअकुम, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी होगा। अल्लाह मार्कों में खुद तशरीफ ला करके दुश्मन को मिटाना चाहता है, लेकिन अगर खुद ही मिटा डाले ये उसकी फितरत के खिलाफ है। वो चाहता है आप आओ मैदान से जाओ, फिर आपकी मदद के बहाने अल्लाह को अपने दुश्मन अच्छे नहीं लगते। वल्लाहु ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को कतई पसंद नहीं करता। लेकिन अल्लाह आपको खड़ा करके शहादतों से नवाजना चाहता है, अजर और गनीमत से नवाजना चाहता है, डिग्रियां देना चाहता है, जन्नतें देना चाहता है, और फिर इस बहाने से मदद नाज़िल करके अल्लाह कुफ्र का कला कमा करना चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों, पाक फौज हो या कोई और फौज हो, हमेशा मार के लोगों को खुद ही लड़ने पड़ा करते हैं। बड़ा बड़ा असलहा, मिसाइल, जहाज, इस तरह के इस्तेमाल तो फौजें किया करती हैं, और जो दू-बदू जंग हुआ करती है, जो हैंड टू हैंड फाइट हुआ करती है, जो गली मोहल्ले में हुआ करती है, वो तो खुद ही लड़नी पड़ा करती है। जिसकी बच्ची होती है उसकी तो खुद ही बिताया करता है। आप देखते नहीं क्या
20 करोड़ के घरों के सामने फौज का पहरा लगाया जा सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। 5-6 लाख फौज को 20 करोड़ की हिफाजत पर वो सरहदें संभालने, वो छावनियों को मुनज़्ज़म करने, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके घर में आपके माल, आपकी जान, आपकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये अकली एतबार से मुमकिन नहीं है। और हमारी छोटी सी उम्र का तजर्बा भी ये बताता है, न नजीबुल्लाह की फौज ने अफगानियों की हिफाजत की, न सद्दाम की फौज ने इराकियों की हिफाजत की। ये तो खुद सारे काम खुद ही करने पड़ा करते हैं। किसी के भरोसे पर मत रहना, ये काम खुद करना है और इसके लिए तैयारी की जरूरत है। दुश्मन सर से आ चुका है और हिंदुस्तान की जुबान अमेरिका बोल रहा है। हमने कहा तुम बलोचिस्तान में हिंदू हो, बलोचिस्तान में मुतहर्रिक हो, वहां बगावत खड़ी करना चाहते हो। अमेरिका कहता है हम इसको मुस्तरद करते हैं। तुम्हें किसी ने पूछा था? बात उनसे होती है, मुकाबला वो कर रहा है, हमला मुंबई पे होता है, तहकीकात अमेरिका कर रहा होता है और पूरी सपोर्ट दे रहा होता है। सच फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, दुश्मन सारे, कुफर सारा, वो एक ही मिल्लत, वो एक है और उसका मुकाबला हम सबको करना है। और अफसोस है कि मुसलमान एक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी है इसको लेकर पेश करना है। मदद अल्लाह ताला के साथ, उसकी कुव्वत के साथ हम लड़ेंगे। हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने जोरे बाजू के साथ, अपने मीडिया ट्रायल के साथ लड़कर जीत नहीं सकते। हम तो सिर्फ रब्बुल जलाल की कुव्वत के साथ जीत सकते हैं। और जरूरत इस बात की अपने अमाल और किरदार के साथ अल्लाह की कुव्वत हासिल करने की कोशिश की जाए और अपने आप को तैयार करके दुश्मन के उस दिन के लिए जिसका वो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए वो कोशा है, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। मौका अब है, सिर्फ खाली आंसुओं के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। अल्लाह तबारक व तआला जो मैंने अर्ज किया समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।